Hello, hello, good morning. Hello, is everyone there? Okay, so our revision session is going on. Slowly and steadily, we are doing the revision along with our studies. Test series is also going on. And as you know, in revision, we have already done the topic demand, elasticity of demand, and supply. Three topics are done. Slowly and steadily, we take one topic in one lecture, basically. And today we are doing the topic market as it was decided before. After this topic, we can say proudly that four topics will be completed: demand, elasticity of demand, supply, and market. These four together approximately carry around 40 marks, 40. As you know, the breakup of marks of each topic. So these all four topics are very, very important category. There is no question of leaving any of the topic or any of the answer option as such. So these four topic form a part of a group where you include demand, supply, then you understand the concept of market. With demand, you understand last of demand. Of course, but you have to be very careful that you don't have to do those questions which have been omitted from the syllabus due to coronavirus. So that part I've already said to you. After this topic, then we will come on consumers' behavior. Consumers' behavior and demand are separate concepts. That's why I do first demand supply market and then I go to consumers' behavior. So next lecture, we will be taking consumers' behavior. As you know, exams are not before the month of April. Minimum, कम से कम अप्रैल या मई जाएगा. तो टाइम टेबल भी आने वाला था, पता नहीं क्यों नहीं आया, या अभी डेट वाइज आएगा शायद एक वीक के अंदर. डेट वाइज भी आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी तारीख को कौन सा पेपर होगा. एक्सपेक्टेड अराउंड आई थिंक 15 अप्रैल और समथिंग लाइक दैट. सो टाइम टेबल इज एक्सपेक्टेड टू कम. सो दिस रिविजन लेक्चर इज बीइंग केप्ट ताकि तुम्हारा टच जाए नहीं इको का. टच नहीं जाना चाहिए. माना कि सिलेबस हो गया है बट वो टच रहना जरूरी है. इसलिए स्लोली एंड स्टडीली एटलीस्ट वीक में एक लेक्चर तो अपना होता ही है. आगे जरूरत लगेगी तो दो कर सकते हैं, अभी तो एक हो रहा है. एंड स्लोली एंड स्टडीली हमारा साथ में रिवीजन भी चल रहा है. एज यू नो, टेस्ट सीरीज भी अपनी चालू है और अब एक और टेस्ट हमारा आएगा. ऑलरेडी दो टेस्ट हमारे इस मंथ में हो गए हैं. सो टू टेस्ट हैव ऑलरेडी बी डन. पेपर तो मेरा ही सेट किया होता है. तो अब एक और टेस्ट आने वाला है एज यू नो. सो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी इम्पोर्टेंट है एंड आई होप यू आर गिविंग द टेस्ट. लेट्स सी अगर क्लासेस ओपन होने का परमिशन गवर्नमेंट से मिलता है, बिकॉज कोचिंग क्लासेस कैन नॉट ओपन अंटिल गवर्नमेंट परमिशन इज ऑब्टेन. तो फिर आगे टेस्ट डेफिनेटली अपने क्लासरूम्स के अंदर भी कंडक्ट हो सकते हैं. ओके, वेरी गुड. सो as far as the test series is concerned, excuse me, of course you may be giving other tests also, you must be giving other tests also. As far as other subjects are concerned, अभी शायद बीके का ही था एक दो दिन पहले, नहीं, and so on. So accordingly, as far as eco is concerned, and definitely I will definitely say that you have to give test of all the subjects, no doubt about that, and with sincerity, without copying or anything like that, within the time frame given. Accordingly, you have to submit it. Accordingly, papers will be checked, and so on. Of course, this process is now being made online because of all the situations being present. This is the timetable in my hand, and as far as this timetable goes, 29th को इको, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इको, 29th को इको आ रहा है, जिसमें अच्छा हुआ अभी सप्लाई अपन ने लास्ट वीक किया था, मार्केट अभी कर रहे हैं, और इंडेक्स नंबर भी शायद जब तक आ जाएगा. आज कितनी हो गई, 22. नहीं भी आया तो इंडेक्स नंबर बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं. हाँ, ये मैं बता दूं विच इज ऑब्वियस कि इंडेक्स नंबर में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ. वी हैव डन इन द क्लास, भी पूछ सकता हूँ. आई मे आस्क इट because it is a part of syllabus and we have done it in the class. You remember last spray, pasche, types of different index number, है ना. तो मे बी बाकी पेपर पैटर्न मोर और लॉस वही है. शॉर्ट नोट है, डिस्टिंग्विश है, लॉन्ग आंसर है. ओ गॉड. तो आई मे पुट इवन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड. ओके. तो बाकी द पेपर पैटर्न इज मोर और लेस सेम. 30 marks, 1 hour, 9:15 to 10:15. 29th Friday.
टुडे इज ऑल्सो आई थिंक फ्राइडे, टुडे इज थर्सडे राइट, तो नेक्स्ट फ्राइडे टाइम है, चलो कोई बात नहीं, एज फार एज दिस मंथ इज कंसर्न. सो दिस टॉपिक्स विल ऑल्सो बी कवर्ड. एंड पहले हमने 7 नेशनल इनकम और 8 और 9 और 10 पहले ही कर लिया है. और ये हो जाए तो इसका मतलब इको के सारे टॉपिक्स के टेस्ट हो जाएंगे. पहले 3 टॉपिक के हुए थे, फिर 3 टॉपिक के हुए थे, फिर 2 हुए, फिर 2 हुए, फिर अब ये 3 हो रहे हैं. In other words, officially each topic is covered at least once. And more tests will also come. We will also be having prelims in the long run. We will talk about that as the time progresses. Now, today, as you know, we are also making question bank of each topic. The topic very interesting is forms of market. इकोनॉमिक्स में पहले हम ये जानना चाहेंगे, टॉपिक तो हमारा हो गया है, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग as per the plan, no problem. And you can score 90 plus in eco if you are doing it perfectly along with revision. You are also revising it on regular basis, giving the test, writing practice and so on. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मार्केट मंजे का है. व्हाट इज मार्केट? एक्सप्लेन और डिफाइन, और उसका क्लासिफिकेशन क्या है. एज वी नो सिलेबस हैज चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं सिलेबस में, लाइक इंडेक्स नंबर, पब्लिक फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड, कुछ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये तो पूरे नए टॉपिक्स ही डाल दिए गए. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. नाउ द सिलेबस इज वेरी ट्रिकी. अच्छा, मार्केट क्या है? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, मार्केट है जहां सेलर है, बायर है, एक जन बेच रहा है, एक जन खरीद रहा है. लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट बहुत वास्ट वर्ड है. आपको अगर याद हो, मार्केट हर वो जगह है जहां बायर एंड सेलर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं ताकि एक्सचेंज हो सके इजीली एंड क्विकली. तो ऐसे बोलते हैं, मार्केट इज अ प्लेस where buyers and sellers come in close contact so that exchange can take place easily and quickly. अब ये बात सुनो, buyer and seller come in close contact. I want to ask you, what do you mean by the word close contact? क्या कोई गले मिलने की जरूरत है? What is close contact in this example? Can anybody tell me what is the meaning of the word close contact? Close contact means communication. They needs to contact each other. They need to have a communication with each other. Written हो, oral हो, phone से हो, internet से हो, जो भी हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से, मुझे तीखा पसंद है, तो मुझे खाना है सबसे तीखी चिप्स. बता सकते हो सबसे तीखी चिप्स कौन सी है आज दुनिया में? लेटेस्ट से सबसे तीखी चिप्स है जोलो चिप्स. आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है. तो जोलो चिप्स मुझे चाहिए. क्या मैं मंगा सकता हूँ? कहाँ मिलेगी मुझे? नीचे किराने की दुकान में मिल जाएगी? कुरकुरे के बाजू में पड़ी रहती है? नहीं मिलेगी. तो क्या करूँ, कैसे मंगाऊँ मैं? हाउ विल आई गेट दिस एट माई होम? आई कैन ऑर्डर इट ऑन अमेजोन. अमेजोन पे मिलेगा कि नहीं? तो अमेजोन पे मैं ऑर्डर दे दूंगा, तो कुछ दिन में वो जोलो चिप घर पे आ जाएगी. मान के चलो ये जोलो चिप, आई डोंट नो कौन सी कंट्री में बनती है, एनी आइडिया? कोरिया की है क्या? कौन सी कंट्री की है? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? मान के चलो ये कोरिया की है, चलो ठीक है. अब कुरला की नहीं है, कोरिया की. बट वहां से ये यहाँ मीरा रोड में डिलीवर हो सकती है. वो ठीक है, अमेजोन वो करेगा, वो सब ठीक है. मैं ये पूछता हूँ, क्या मेरे बीच में और उनके बीच में कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? मैंने पैसे पे किया या कैश ऑन डिलीवरी या जो भी है, और एक्सचेंज होगा. मैंने उनको कंसिडरेशन दिया, बदले में वो लोग मुझे वो जोलो चिप भेजेंगे. तो क्या ये मार्केट है कि नहीं है? मतलब मार्केट की कोई सीमा नहीं, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है. मार्केट हर वो जगह है जहां बायर एंड सेलर है, जिनके बीच में क्लोज कांटेक्ट हुआ है, चाहे अमेजोन के थ्रू हो या जो भी कांटेक्ट हुआ है, ताकि एक्सचेंज हो सके इजीली एंड क्विकली. मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अपना अर्जुन जो है वो एमबीए की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया. वहां उसको आचार की बहुत याद आ रही थी, आचार पिकल.
तो उसने मुंबई से ऑर्डर दिया अचार का। अब वो अचार, कैरी का अचार, 1 किलो अचार, कुछ दिन बाद उसको ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, उसे उसकी हॉस्टल में डिलीवर किया गया। क्या ये मार्केट है? हाँ, ये मार्केट है। आई होप यू रिमेंबर, हर वो जगह जहाँ बायर और सेलर है, जहाँ क्लोज कॉन्टैक्ट है, ताकि एक्सचेंज हो सके easily and quickly. So see, that is written in the first part, which I've already explained, and now we are just revising it. अब उसका डेफिनेशन भी थोड़ा रट्टा तो मानना पड़ेगा। रिमेंबर, एक चीज होती है एक्सप्लेन और मीनिंग, और एक चीज होती है डेफिनेशन। डेफिनेशंस जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, एंड वेन एवर दे हैव बीन गिवन वी हैव कवर्ड। यू नो, ईस्ट और वेस्ट, अपनी बुक इज बेस्ट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग। और ये तो मैंने मार्च में ही ये मेहनत शुरू कर दी थी, और धीरे धीरे करते हमारी एक प्यारी सी बुक तैयार हो गई, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश, एग्री डिसएग्री, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एवरीथिंग इज देयर इन अ बुक। और फिर बाद में अर्जुन, मैंने 5 मॉडल पेपर खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये मॉडल पेपर्स एग्जैक्टली एज पर बोर्ड पेपर पैटर्न मैंने बनाए हैं। ये मॉडल पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी हम आंसर डिस्कस करेंगे क्लास में। यू कैन ट्राई, बट वी विल ऑल्सो डिस्कस इन द क्लास। रिवीजन के साथ साथ बीच में मैं, जैसे रिवीजन का ये टॉपिक्स हो जाते हैं तो वो करने में और मजा आएगा, एंड वी कैन go through or do or discuss those papers. And I have made those papers, ऐसा नहीं कोई मार्केट से बुक लाया और वहाँ से कॉपी किया, खुद मैंने अपने बनाया। एंड मैंने मार्क्स का भी बैलेंस रखा है कि विच टॉपिक कैरीज हाउ मच मार्क्स, अकॉर्डिंगली आई हैव मेड दोज पेपर्स। आई होप यू हैव कलेक्टेड दैट बुक कैन बी वेरी हेल्पफुल। और फिर बाद में हमारे प्रीलिम्स भी होने वाले हैं अलग से, ऑफ कोर्स वो भी अलग पेपर्स होंगे, इनमें से थोड़ी पूछूंगा मैं, थोड़ा अलग तो होना चाहिए ना। चलो ठीक है ना, मार्केट का मीनिंग मालूम पड़ गया, डेफिनेशन बोल रहा था मैं। एक फॉरेन इकोनॉमिस्ट ऑगस्टिन कॉर्नेट, उन्होंने कहा, नॉट ओनली या नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, बट द होल ऑफ एनी रीजन, each buyer and seller are in close contact with one another, that prices of the same goods tend to equality easily and quickly. प्राइसेस जो है वो हिसाब से इक्वालिटी पे आए। प्राइसेस कैसी इक्वालिटी पे आते हैं वो आगे आएगा बाद में, जो प्राइस डिटर्मिनेशन में हमने देखा है। तो ठीक है, ये डेफिनेशन, आई रिपीट अगेन, not only, now if they ask you definition, like in question 2 in board exam, one question is dedicated only to define the following term or explain, where if they asking you definition, then you'll have to give the definition. Definition में आप ये लिखोगे, market is a place buyer and seller coming in contact, exchange can take place, sorry, your marks will be accordingly deducted. If it's a definition, you have to define it in the terms of the definition itself. Then you can't write the meaning. हाँ, अगर explanation है तो फिर explanation तक बात सीमित होगी, but definition has to be point wise. That you have to keep in mind. I repeat, not only particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such close contact with one another that prices of the same goods tend to equality easily and quickly. Okay. So for that you have to read it 2-3 times. You have to do writing practice. तो काम चले। चलो ठीक है, मीनिंग डेफिनेशन तो आ गया। फिर आपको याद होगा हमने क्लासिफिकेशन किया था। मार्केट का क्लासिफिकेशन तो हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट नोट के तौर पे, या कोई एक पार्ट आ जाए इसमें से। क्लासिफिकेशन 3 टाइप हो सकता है, PTC, P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम, C फॉर कंपटीशन। प्लेस ये सबसे इजी है, कोई स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। इसमें आता है लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। अगर कोई चीज लोकली बिकती है तो लोकल मार्केट है, नेशनल तक बिकती है तो नेशनल है, इंटरनेशनली बिकती है तो इंटरनेशनल है। कैन यू ट्राई एंड टेल मी? अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूँ भाई, क्या नाम है, सुपर डेयरी का फालूदा। ओ हो, कभी सुपर डेयरी का फालूदा पिया है कि नहीं? क्या बात है। क्यों अर्जुन, कैसा लगा फालूदा? सुपर डेयरी का फालूदा मोर देन 25 ईयर्स हो गए, आज भी लाइन लगती है, लाइन, और एकदम प्योर और एकदम फ्रेश। बताओ कैसा मार्केट है सुपर डेयरी का फालूदा? सुपर डेयरी सुना है कि नहीं? मीरा रोड, नया नगर की बहुत ही फेमस डेयरी सुपर डेयरी। आए कि नहीं गुरप्रीत, आपने फालूदा पिया है कि नहीं सुपर डेयरी का? कभी आओ,
शाम को फालूदा पी के जाओ, बहुत बढ़िया है। जैद, आपको तो कल ही देखा था मैंने सुपर डेयरी पर, आप फालूदा ले रहे थे पार्सल, पता है मुझे। तो लोकल मार्केट, क्योंकि वो मीरा रोड में ही मिलता है। अगर सुपर डेयरी, अब भाई दूसरी दूसरी जगह दूसरा दूसरा फालूदा मिलता होगा, बैंड्रा में, अंधेरी में, लेकिन सुपर डेयरी का फालूदा तो सुपर डेयरी में ही मिलेगा, मीरा रोड में ही मिलेगा। असलम भाई का रगड़ा याद है? रगडा म्हणजे उसल, उसल म्हणतात ना आपण, ते रगडा, ते पण काय झालं, लोकल मार्केट। ओ हो। अच्छा, मैं बोलता हूँ, ठीक है, क्या नाम लो या, ठीक है, ब्रिटानिया मारी बिस्कुट, ब्रिटानिया मारी बिस्कुट, सुबह चाय के साथ खाते हैं मारी बिस्कुट। मारी 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 बिस्किट नहीं सुना जिंदगी में? मैरी गोल्ड बोलते हैं, मारी गोल्ड, वो मारी बोलते थे उसको, अभी मैरी गोल्ड बोलते हैं। नेशनल मार्केट, गुरप्रीत इज राइट, ये नेशनल मार्केट है। मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट तो नहीं होता होगा, मान लो नहीं होता, तो नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट मतलब हमारी पूरी कंट्री में मिलेगा। पंजाब में भी मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा, केरला में भी मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा, आसाम में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। नेशनल मार्केट, ओके। अमूल घी, अमूल शुद्ध घी, अमूल देसी घी, अगेन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल मार्केट। ओके, नेस्कैफे, द वर्ल्ड्स फेवरेट कॉफी, नेस्कैफे, इंटरनेशनल। नेस्कैफे पूरे वर्ल्ड में मिलेगी। आप लंदन एयरपोर्ट पे जाओ, वहाँ भी मिलेगी। दुबई जाओ, वहाँ भी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहाँ भी मिलेगी। इंडिया में भी मिलेगी। इंटरनेशनल, वेरी गुड, दैट वाज वेरी सिंपल। ना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देखो ये तो एक्चुअली जनरल नॉलेज था, ये इकोनॉमिक्स है और ये भी इकोनॉमिक्स है। टाइम के हिसाब से पहली बात तो इकोनॉमिक्स में जो पीरियड है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। समय को 4 पार्ट में किया है, फ्रॉम स्लो टू फास्ट, स्लो टू फास्ट नहीं बोलेंगे, कम से ज्यादा, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय। वेरी शॉर्ट पीरियड में ना, देखो पहले मैं बता देता हूँ, जब भी हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, सेलर, सप्लायर या प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, तो 2 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं प्रोडक्शन के लिए। कैन एनीवन टेल मी? मैंने आपको एक टेबल भी बना के दिया था ऐसे टिक और क्रॉस मार्क करके, कौन से फैक्टर्स लगते हैं प्रोडक्शन के लिए। इको को, इको के दिमाग से पढ़ो तो फिर 90 प्लस आएगा। गुरप्रीत, 2 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, fixed factors and variable factors. I'll tell you, remember that there are 2 type of factors which are used for production of goods and services, variable and fixed. Now if it's a very short period, in such a short, very short period, you can't change the variable factor and you can't change the fixed factors, you can't change anything. First, if you want, if you remember in the class I had given you, class matlab online hi, I had given you one table also. अरे अर्जुन, वो टेबल याद है कि नहीं आपको? टिक क्रॉस मार्क कराया था मैंने। तो वेरी शॉर्ट पीरियड, you can't change the variable factor, you can't change the fixed factor, the supply cannot be increased at all. In other words, the supply will be perfectly inelastic. In the short period, you can change the variable factors but you can't change the fixed factors, relatively inelastic. इलास्टिक इनलास्टिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मेन तो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। लॉन्ग पीरियड यू कैन चेंज बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड, तो इट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। एंड सेम वे वेरी लॉन्ग पीरियड तो और भी इलास्टिक हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई थिंक साबुन की फैक्ट्री, अर्जुन जो है वो साबुन की फैक्ट्री का मालिक है। क्यों अर्जुन, याद आ रहा है? और आप सोप बनाते हो, रोज साबुन नाम रखा है उसने, रोज साबुन से रोज नहाओ और रोज की तरह खिल जाओ। वाह वाह, आजकल तो प्राइवेट साबुन का भी मार्केट बहुत चल रहा है। कई लोग साबुन बना के इंस्टाग्राम वगैरह पे बेच रहे हैं। एलोवेरा वाला ने, ये वाला ने, फलाना वाला ने, ढिंका वाला ने, पपैया वाला ने, बनाना वाला ने, पता नहीं क्या क्या। चलो वो तो ठीक है। तो इन्होंने साबुन की फैक्ट्री डाली है ना, साबुन की फैक्ट्री में साबुन बनाना है, तो साबुन बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, केमिकल या जो भी चाहिएगा, सोप बेस चाहिएगा, लेबर लगेंगे, वेजेस हो गया, लेबर बोल दो, चलो ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया,
और साथ में मशीन्स, बिल्डिंग या जगह, ये भी तो चाहिए। तो इसमें आपका रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, ये सब है वेरिएबल फैक्टर। और जो आपका लैंड, बिल्डिंग वगैरह है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है, ये है फिक्स फैक्टर। तो दो टाइप के फैक्टर लगते हैं जैसे मैंने आपको बताया। आई रिपीट अगेन, वेरी शॉर्ट पीरियड में कुछ चेंज नहीं हो सकता, इसलिए सप्लाई सर अभी चेंज होगी। शॉर्ट पीरियड में आप वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं। नया रॉ मटेरियल ले लिया, थोड़ा बहुत आ जाएगा, थोड़ा वर्कर आ जाएंगे, थोड़ा पावर एंड फ्यूल आ जाएगा, लेकिन आप मशीनरी और बिल्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए सप्लाई कैन बी इंक्रीज ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लॉन्ग पीरियड में आप वेरिएबल और फिक्स दोनों चेंज कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, साबुन की फैक्ट्री थी, 1 साल का टाइम दे रहा है। अगर हम एक दिन में 100 साबुन बनाते हैं और बाजू वाला बोल रहा है 1 साल देता हूँ, मुझे 50,000 साबुन चाहिए, तो हम बना के दे सकते हैं। क्यों? लॉन्ग पीरियड है। ऐसा मैंने एग्जांपल भी दिया था, एंड वेरी लॉन्ग। और वो आपको मैं नीचे बता देता हूँ, ये देखें, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। एंड मैंने तो एक छोटा टेबल भी बना के दिया था। वेरी शॉर्ट पीरियड, सप्लाई इज फिक्स्ड। और क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है, ये बात भी बोलता हूँ, तो प्राइस जो है वो डिमांड ही डिसाइड करता है। क्योंकि सप्लाई तो वैसी की वैसी खड़ी है। ये डायग्राम्स वगैरह तो अपने सिलेबस में नहीं है। अगर आप अभी सीए फाउंडेशन में होते तो मैं डायग्राम बना के दिखाता कि किस तरीके से डायग्राम से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। अच्छा, ये तो आपको मालूम होगा कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, नेक्स्ट आंसर में आने वाला है, बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इफ सप्लाई इज फिक्स्ड, देन हु इज द वन हु इज डिटरमाइनिंग द प्राइस? Demand is determining. Time period is for a few weeks or days. Supply cannot be increased. It is known as very short period. Short period basically less than 1 year है. You can make adjustment in labor to increase the supply. Long period, all factors and cost are variable. सारे cost adjust हो सकते हैं, 5 साल तक बोल सकते हैं. And very long period, more than 5 years भी बोल सकते हैं. जितना है उतना ही अपन बोलेंगे. Then we come to on the basis of competition. हमारे सिलेबस में आगे पूरा यही है. आगे के आंसर्स जो हैं वो यही है। ये देखो, ये वाले कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन वी कैन क्लासिफाई द मार्केट इनटू 2 कैटेगरीज, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन थोड़ी देर में हम बात करेंगे। वो मार्केट है, डू रिमेंबर, जो 9 के 10 जो अपने पॉइंट्स हैं वो पूरे करता है, और वो थोड़ी देर में हम बात करेंगे। सम 9 पॉइंट्स आते हैं। इफ ऑल 9 पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड, द मार्केट इज कॉल्ड परफेक्ट मार्केट। जो 9 में से एक भी पॉइंट अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो वो इम्परफेक्ट है। लेकिन इम्परफेक्ट में वो कौन सा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट। इट कैन बी एनी ऑफ द 3। मोनोपोली, मॉम, MOM, अरे वाह, कोड वर्ड बन गया, मॉम, MOM, मॉम। वो श्रीदेवी की पिक्चर थी मॉम। मॉम या तो मोनोपोली है, या तो वो ओलिगोपोली है, या तो मोनोपोलिस्टिक है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फीचर्स। तो वो अपने आप में सेपरेट आंसर्स है। तो in other words, we have to study 4 answers: perfect competition, उसके features; monopoly, उसके features; oligopoly, उसके features; monopolistic competition, उसके features। ये हमारा आगे का टारगेट है। पहले लेकिन हम परफेक्ट कंपटीशन जानेंगे, और परफेक्ट कंपटीशन में एक और आंसर करेंगे कि उसमें प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली। तो ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जहां हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट जानने को मिल रहा है। चलो अर्जुन, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम खाली नाम बता देते हैं इनका। ये देखो, ये रहा ए परफेक्ट कंपटीशन, और बी इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में 3 नाम। नाउ दीज आर बेसिकली आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चंस। तो वो परफेक्ट कंपटीशन पूछेंगे, एक फुल फ्लेज आंसर है उसके ऊपर। इम्परफेक्ट में कौन सा नाम पूछते हैं वो, बट हमें सब अच्छी तरह पढ़ के जाना है। लाइक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अगर आते हैं तो हमें तैयार रहना है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या आंसर होगा। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल। वैसे आई रिपीट अगेन, हमने अपनी टेक्स्ट बुक में, अपने क्लासेस की नोट्स में ऑलरेडी सब बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। मैंने खुद ऑब्जेक्टिव्स के 2 पार्ट बनाए हैं, एक गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्टिव्स और एक अपने ऑब्जेक्टिव्स। दैट कवर्स बेसिकली एवरीथिंग, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। नाउ सपोज आई आस्क यू, यू हैव टू टेल मी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा, तो मुझे पता भी चले कि तुम आंसर दे रहे हो कि नहीं, ट्रू और फॉल्स। ओके,
Nescafe is sold all over the world. It is a dash type of market according to time. कैसा मार्केट? इंटरनेशनल. ओके. ठीक है. Monopoly is a type of perfect market. True or false? Monopoly is a type of perfect market. False. Monopoly तो imperfect market का बेटा है. Perfect market तो सिर्फ perfect market एक ही है. अच्छा. Long period is a period which is greater than 1 year. True के false? Long period is a period which is greater than 1 year. जल्दी बताओ. यस, सोच लो. लॉन्ग की बात की मैंने, शॉर्ट की नहीं बात की. आंसर इज फॉल्स. शॉर्ट पीरियड जो है वो ग्रेटर देन 1 year है. सॉरी यार, हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर. ग्रेटर देन 1 year बोला, लॉन्ग बोला ना मैंने, राइट. हाँ बराबर. तो 1 के नीचे है तो शॉर्ट है, तो 1 के ऊपर हो गया तो लॉन्ग हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड, राइट. वेरी लॉन्ग पीरियड इज जनरली मोर देन 5 years. ट्रू और फॉल्स? वेरी लॉन्ग पीरियड इज जनरली मोर देन 5 years. वेरी गुड, ट्रू. ठीक है. Market is limited to a particular place. The term market is limited to a particular place. False. Market की कोई सीमा नहीं है. सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई. याद आया? आचार की बरनी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई, 7 समुंदर पार पहुंच गई. तो इससे साबित होता है कि मार्केट की कोई फिजिकल सीमा नहीं है. चलो ठीक है, ये सब बेसिक्स तो हो गया. अब एक एक आंसर को अंडरस्टैंड करेंगे. कोई नहीं, छोटा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा 8:30 तक. फिर अगली बार हम करेंगे कंज्यूमर्स बिहेवियर. तो एक बार आप रीड करके जरूर आना. यूटिलिटी वाला जो हमारा टॉपिक था, स्लोली स्लोली हमारा काम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. परफेक्ट कंपटीशन क्या है? क्या है उसके फीचर्स, क्या है उसके एजम्पशंस? पहली बात तो मैं बोलता हूं, इसका डेफिनेशन सीखने के लिए आपको पहले फीचर्स आना चाहिए. सच्ची, बिल्कुल. तो पहले हम फीचर्स ही देखेंगे. परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमिक्स में उस टाइप ऑफ मार्केट को कहते हैं जो 9 पॉइंट्स सेटिस्फाई करेगा. इफ ऑल 9 पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड, only then that market can be called as perfect market. perfect market बोलो, perfect competition बोलो, जो बोलना है बोलो. वो 9 पॉइंट पूरे होना चाहिए. अगर एक भी पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो उसको परफेक्ट मार्केट इकोनॉमिक्स में नहीं कहते. What are those 9 points? I think we had made a very good code word about that. I know it. लाल लाल होठ फटे सारे. देखो, अभी तुम रिवीजन के लिए बैठोगे तो साथ में नोटबुक लेके बैठो. लाल लाल होठ फटे सारे, पहला प्यार नाम ऐश्वर्या राय. रिमेंबर, ऐश्वर्या राय क्या बोल रहा है? ऐश्वर्या बोल दिया, बस हो गया, है कि नहीं? पहला नाम, पहला प्यार नाम ऐश्वर्या. तो ये 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे. एक्सक्यूज मी. लेट अस अंडरस्टैंड ईच वन इन डिटेल. अगर ये रिवीजन लेक्चर है करके, वरना खाली ये आंसर पढ़ाने को खाली 45 मिनट्स लग जाते हैं, खाली ये आंसर पढ़ाने को. बट आई नो के वी हैव डन इट ऑलरेडी. लार्ज नंबर ऑफ सेलर. हम परफेक्ट मार्केट मतलब ऐसे मार्केट की कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, जहां हजारों हजारों सेलर्स हैं. द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज कि एक सिंगल सेलर मार्केट के सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. अगर वो सोचता है कि मैं आज से सप्लाई करना बंद कर दूंगा, सो द सप्लाई विल स्टॉप. दैट इज हिज मिस्टेक. In actual life, it is just not possible. The number of seller is so large that even if a single seller increases or decreases supply, it will have a very little effect on the total market supply. इतना ही बोलना है बस. तो कितने सेलर है बताओ? हजारों हजारों सेलर है. अगर वो अपनी सप्लाई बढ़ाए या कम करे तो
कोई मार्केट सप्लाई को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम लॉजिक, लार्ज नंबर ऑफ बायर। कितने बायर से जल्दी बताओ? हजारों हजारों बायर। अगर वो अपनी डिमांड बढ़ाए या कम करे तो क्या फर्क पड़ने वाला है टोटल मार्केट डिमांड को? नहीं पड़ने वाला है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सेम लॉजिक। अच्छा, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है लाल लाल होठ फटे, होठ होमोजिनस है। इकोनॉमिक स्टूडेंट को पता होना चाहिए होमोजेनस का मतलब सिमिलर, एक जैसा, कलर शेप साइज सब वैसे का वैसा ही होगा, एक दूसरे के वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। इसलिए मैंने आपको इमेजिनरी एग्जांपल दिया था अंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। होमोजिनस, अब अंडा तो होमोजिनस ही हुआ ना यार, इधर उधर उधर सब वही कलर है, और क्या मुर्गी के अंडे है कि नहीं? तो होमोजिनस। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये मार्केट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि बायर्स एंड सेलर्स को पूरा फ्रीडम है आने और जाने का। अगर सेलर मार्केट में एंटर होना चाहता है, उसको मुर्गी अंडा वगैरह, अंडे की बात करें, बेचना है, तो ठीक है वो एंटर हो जाए। अगर उसको बंद करना है, बिजनेस जाना है, तो वो चले जाए। अगर बायर को खरीदना है तो खरीदे, नहीं खरीदना नहीं खरीदे, अपनी मर्जी। जैसे तुम्हें सुनने में आया होगा आजकल बर्ड फ्लू का भी स्कैर चल रहा है, कई कई जगहों पे कई बर्ड्स मरे हुए मिल रहे हैं। सम स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा बर्ड्स मरे हुए मिल रहे हैं, कि बर्ड्स में बीमारी आती है बर्ड फ्लू। तो अब अगर बर्ड फ्लू हो गया तो अभी लोग क्या हो जाएंगे, अरे बाप रे चिकन नहीं खाना है भाई, अंडे नहीं खाना है, रिस्क है, हो गया तो मर जाएंगे। एक तो पहले से कोरोना वायरस हो गया, ऊपर से मालूम पड़ा बर्ड फ्लू वायरस भी हो गया। क्या हम लोग कोई वायरस की दुकान है क्या? हर वायरस आएगा हमें बॉडी में घुस के जाएगा? नहीं ना। तो बर्ड फ्लू की वजह से आपने सुना होगा अभी कई लोगों ने चिकन विकन खाना छोड़ दिया, एटलीस्ट सम मंथ्स के लिए अब वो नहीं खाएंगे, बिकॉज रिस्क है, ऐसा उनका मानना है, और रिस्क तो है, तो वो नहीं खाना चाहते, मत खाए। अच्छा, इसी में देखो इकोनॉमिक्स साइंस स्टडीज ह्यूमन बीइंग, इसी में कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता है यार, खाओ ऐश करो। तो अभी वो लोग ना डबल डबल चिकन खा रहे हैं, सस्ता हो गया ना सब। तुम्हें पता है ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल होता है, आपको नॉलेज के लिए बताओ। ओवरऑल डिमांड अभी कम हो गई है चिकन और एग्स की, और सप्लाई तो है ही, तो उसकी वजह से प्राइस नीचे आ गया है। रियल लाइफ में बोल रहा हूँ, अभी चिकन लगभग 100 रुपीज के भी नीचे आ गई है, और अंडा 4 रुपए का एक हो गया है। इतना नीचे प्राइस आ गया है। ये सब तो डिमांड और सप्लाई का ही खेल है भाई इकोनॉमिक्स में। यहाँ तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि आना है आओ, जाना है जाओ। तो 4 पॉइंट हमारे पूरे हो गए, राइट। उसके बाद क्या? उसके बाद 5 6 7 8 9, ऑब्वियसली लाल लाल होठ फटे, सारे। सारे मतलब इन द मार्केट देर इज अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस, जो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगा। याद है डिमांड का, सप्लाई का? अर्जुन याद है डांडिया खेलने गए थे अपन लास्ट ईयर, नहीं, सेक्टर 7 के ग्राउंड पे? तो डिमांड का और सप्लाई का जहां इंटरसेक्ट करेगी वो प्राइस होगा। देन परफेक्ट नॉलेज, पहला प्यार नाम ऐश्वर्या। पहला परफेक्ट नॉलेज, बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अगर कहा ज्यादा भाव होगा तो बायर्स दूसरी जगह पे चले जाएंगे, एंड सो। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स लगते हैं, लैंड लेबर वगैरह कैपिटल वगैरह। तो हम अज्यूम कर रहे हैं, ये देखो ये सब एजम्पशंस है, ये सब फीचर्स है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, बता दूं मैं आपको। फैक्टर्स मोबाइल है, दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर एंड वन रीजन टू अनदर। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट बीच में नहीं पड़ेगी, जो डिसाइड करे बायर्स और सेलर्स आपस में डिसाइड करें। अर्जुन इसके लिए मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूं, सबके लिए ये वर्ड है। इसके लिए एक इकोनॉमिक्स में वर्ड होता है तरुण। अरे वाह, आज तरुण सुबह सुबह आ गया। ओ तरुण, क्या बात है, स्मार्ट मैन। सुबह 7 बजे लेक्चर में आइंग्स एंड पढ़िंग्स। ओहो क्या बात है, तरुण तो हमारे वेकेशन बैच, नहीं, इवनिंग बैच के बहुत ही होशियार इंटेलिजेंट बंदे। और सूरज कैसे हो? एकदम बढ़िया चल रहा है सब? Very good. So, I was telling about this point, no government intervention. Government will not interfere in the working of the market. There is a French word to it. Anybody can try and tell me what's the French word? Need not need to learn French for that. Bon Jovi, Bon Jovi. But what's the word? Anybody have any idea?
The policy of the government in such type of market is called dash policy. I may have said it in the class. No idea, Gurpreet? It is called, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, फ्रेंच वर्ड है, ये वर्ड है. एनी आइडिया? लेजीज फेयर. लेडीज फेयर नहीं, लेडीज कहाँ बोला मैंने, लेजीज बोलते हैं उसको, लेजी भी कहते हैं. यू आर राइट. लेजी फेयर पॉलिसी where the government does not interferes in the working of the market. ये फ्रेंच वर्ड है तो इसके लिए स्पेलिंग भी फ्रेंच के हिसाब से. लेजीज फेयर पॉलिसी, जहां गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफियर नहीं करेगी. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. अब हमारा इंडिया कितना बड़ा है, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया. इंडिया इतना बड़ा, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगते हैं. जैसे मैं अंडे का एग्जांपल ले रहा था, है कि नहीं. सांडी हो या मांडी, रोज खाओ अंडे. जो लोग खा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं. आपको पता है क्या, सबसे ज्यादा ये पोल्ट्री फार्म्स का बिजनेस या पोल्ट्री फार्म्स कहाँ सेटअप है इंडिया में? एनी आइडिया? पोल्ट्री फार्म्स का मेजर कंसंट्रेशन जो है वो, अजीब लगेगा, हैदराबाद के आसपास है, जहां पर सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से जहां तक मैंने सुना है, पोल्ट्री फार्म्स ज्यादा से ज्यादा है. तो ये वहां से अंडे सप्लाई होते हैं. जो लोग मीराउड में अगर नया नगर में रहते होंगे अगर, तो आपको नरेंद्र पार्क मालूम है? नरेंद्र पार्क के अपोजिट एक होलसेलर है अंडे का, महाराष्ट्र एग शॉप. इतने अंडे तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे. फुल ट्रक भर के लोडेड आता है. तुम देख के ऐसे हैरान, छोटे बच्चे तो देखते हैं, बोलते बाप रे बाप इतने सारे अंडे जिंदगी में नहीं देखे. बोले तो मैंने एक बार पूछा, भाई साहब ये कहाँ से आते हैं इतने अंडे? बोले भाई सब हम लोग हैदराबाद से लाते हैं. तो हैदराबाद टू मुंबई मोर देन 700-800 किलोमीटर, शायद 1000 के आसपास किलोमीटर, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगता ही होगा. लेकिन इधर इस एग्जांपल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, जो बहुत घटिया एजम्पशन है, बट ऐसा कहा जाता है. या फिर ये अज्यूम है कि कहाँ भी जाओ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल है, वो भी घटिया एजम्पशन है. तो ये एजम्पशन जरूर है. अच्छा, ये एजम्पशन का लॉजिक क्या है? ये एजम्पशन का लॉजिक ये है कि वी वांट टू कीप द प्राइस सेम. डोंट यू फॉरगेट व्हाट वी सेड. We said that in the whole market there is a single price. Now you tell me, single price can only be there if there are no transport costs. That's why this assumption is there. Now if these 9 points are satisfied, मतलब ये हुआ कि आप मुंबई में बेचो हैदराबाद से, या दिल्ली बेचो, अब हैदराबाद से दिल्ली कितना दूर है, या कश्मीर बेचो या आसाम बेचो, हर जगह ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या तो है ही नहीं या इक्वल है. ये assumption. बट इन रियल लाइफ ये 9 पॉइंट्स है. परफेक्ट कंपटीशन होना पॉसिबल ही नहीं. ये कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, मिस्टर जैद अंसारी, कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ. MYTH, मिथ. कैन यू टेल मी हाउ द हेल परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ? मिथ कैसे है? एनीबडी हैज एनी आइडिया? परफेक्ट कंपटीशन, एशा लाखानी, can you tell me why perfect competition is a myth? First of all, do you know what is the meaning of the word myth? Myth, it's an imagination. It does not exist in reality, right, Shirley Cresto? Now why is it a myth? Come on, I want answer from you. You should be able to give the answer. I'm waiting for your answer, so I should come to know whether you are following it or not. So giving answers will prove that you are actively involved in this lecture. Myth, yes, Yash, you are very right. Not real, imaginary. And why it is a myth? Because Mr. Dev, you have rightly said, many of the conditions given here can not be satisfied in real life. Many of the condition, I say, मैं तो बोलता हूँ यार खाली पहली 2 कंडीशन ही होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ, बाकी सब नाटक है. होमोजीनियस कमोडिटी, ठेंगा, सब अंडे एक जैसे कैसे हो गए? फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट, गलत. शराब मेरे को बेचना है, क्या मैं ऐसे ही रोड पे शराब बेच सकता हूँ? नहीं, बेचना भी नहीं है, बट बोल रहा हूँ. परफेक्ट नॉलेज, जरूरी नहीं कि परफेक्ट नॉलेज हो. परफेक्ट मोबिलिटी, जरूरी नहीं कि परफेक्ट मोबिलिटी हो. गवर्नमेंट बीच में नहीं पड़ेगी, गलत. सो इन अदर वर्ड्स, इन इकोनॉमिक्स इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. वेरी गुड. तो अब भाई सवाल ये आ रहा है कि परफेक्ट मार्केट रियलिटी में नहीं होता.
तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। तो फिर रियल में क्या होता है? भाई रियल में इम्परफेक्ट मार्केट होता है। विल गो ऑन दैट, बट पहले परफेक्ट कंपटीशन का एक आंसर और करना है। मैं मानता हूं कि इमेजिनरी बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सपने में एक सपना भी तो और देख सकते हैं। सोचो कभी आपने सपने में सपना देखा है? ओ हो, हम एक सपना देख रहे हैं और उस सपने के अंदर एक और सपना देख रहे हैं। क्या बात है! फिर सुबह अचानक उठे, अरे बाप रे, मैं सपना देख रहा हूँ, सपने के अंदर एक और सपना। बाप रे बाप! मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं लंदन में हूँ और उस सपने के अंदर मैं एक और सपना देख रहा हूँ कि मैं लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ। क्या बात! तो ये भी एक इमेजिनेशन ही है। इक्विलिब्रियम प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में यू सेड सिंगल प्राइस होता है। नाउ एलिटा, हाउ द हेल दिस प्राइस इज डिटरमाइंड, दैट इज द क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स कहता है दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ टोटल मार्केट डिमांड एंड टोटल मार्केट सप्लाई। रिमेंबर, एक अकेला बायर या एक अकेला सेलर प्राइस नहीं डिसाइड कर सकता। एक्सक्यूज मी, सारे के सारे बायर या सारे के सारे सेलर भी प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये तो जब सब मिलेंगे, सारे के सारे बायर और सारे सारे के सारे, ओ गॉड, मतलब डिमांड का और सप्लाई का, जब ये इंटरसेक्ट होगी वहां प्राइस डिसाइड होगा। तो प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरएक्शन ऑफ टोटल मार्केट डिमांड एंड द टोटल मार्केट सप्लाई। बराबर है? दैट प्राइस where डिमांड एंड सप्लाई आर इन इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले अ इक्वल इंपॉर्टेंट रोल। So individual seller or buyer cannot influence the price. I've already told you that. Then we have a schedule and a diagram in this. If this is asked as a separate short note, then you are expected to draw or make the schedule, and you are also expected to make the diagram. याद होगा आपको 5, 10, 15, 20, 25 डिमांड, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होती जाएगी। पहले प्राइस कम था तो 100 है, अभी 20 कम कर दिया 80 60। प्राइस कम है तो सप्लाई कम है, ये इसका उल्टा हो गया 24। अब इस एग्जांपल में कैन यू टेल मी इस टाइम पर इस मार्केट में क्या प्राइस है? आई वांट टू आस्क यू, क्या इक्विलिब्रियम प्राइस है इन दिस मार्केट एट दिस टाइम? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस? मोर देन 50 पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड, इट्स वेरी गुड। और एक भी लेक्चर एब्सेंट नहीं होना है। एक लाइव रिवीजन की बात ही अलग होती है भैया। ये लाइव रिवीजन है, लाइव रिवीजन इज द बेस्ट। सुबह जल्दी उठना तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एक आदत बना के रख लो। जल्दी सोओगे तो ऑटोमेटिक जल्दी उठोगे। वैसा मत करो, आजकल के बच्चे 1-2 बजे सोते हैं, 11-12 बजे उठते हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो एक्चुअली। स्कूल में कैसे था, अपना जल्दी उठते थे ना, बस वैसे ही। यस, 15 रुपीज यू सेड। हाउ कैन यू से दैट 15 रुपीज इज द राइट आंसर? Prove to me, how can you say that 15 rupees is the right answer? Very good. At 15 rupees, demand and supply both are equal. Very good. So this is the equilibrium price. And that is in our syllabus, how it is determined. यू नो, इफ देर आर चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगले दिन डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, या डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ जाती है, डिमांड सप्लाई दोनों कम हो जाती है, या डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ती है लेकिन डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ती है, या डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ती है, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ती है, या डिमांड सप्लाई दोनों कम होती है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा कम होती है, या डिमांड सप्लाई दोनों कम होती है, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा कम होती है। अपने सिलेबस में नहीं है, सीए में है, या अलग अलग मैंने एग्जाम्पल दिए, तो वो हिसाब से प्राइस भी चेंज होता है। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, तो इसलिए हम बात नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है कि प्राइस डिसाइड कैसे होता है। बट बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट, मैं एक एग्जांपल तो जरूर दूंगा। चिकन का प्राइस, एग्जांपल चिकन का लेके चल रहे, एग्जांपल तो काल्पनिक होता है, 150 रुपीज केजी था। बर्ड फ्लू का स्कैर होने की वजह से, अब कोई बोल रहा है कि बर्ड फ्लू नहीं, बल्कि ये जियो का 5G का टावर लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अब पता नहीं, मोस्टली तो बर्ड फ्लू ही लग रहा है, लेकिन कल एक न्यूज़ आई कि अभी 5G के टावर्स लगना चालू हो गए। तो 5G के टावर्स लगेंगे तो उतना रेडिएशन होगा, उतना रेडिएशन होगा तो बर्ड्स तो मरेंगे ही। वो कौन सी पिक्चर थी ना अक्षय कुमार की, अरे उसमें सब बर्ड्स मरते रहते हैं, फिर वो भूत बन जाता है, ऐसा कुछ था, पता नहीं कौन सी थी वो पिक्चर। अरे वो सब इस पे ही तो थी। तो हम 5G 6G तो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसको नुकसान भी तो हो रहा है। ये रेडिएशन वगैरह अच्छी चीज़ थोड़ी है। तुम लोग मोबाइल लेके अपने पास लेके सोते हो ना, एयरप्लेन मोड पे डाल दो, मैं तो एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ रात को सोते हो,
और क्या, फोन आएगा तो अरे आएगा तो आएगा, और क्या, कोई रिलेटिव या कोई मरे बुरा गया तो मम्मी के फोन पे आ जाएगा, अपने को क्या इतना अर्जेंट काम है, बंद करके सोना है फोन, नो डिस्टर्बेंस, है कि नहीं? तो वो रेडिएशन बहुत खराब है। हाँ, रोबोट रोबोट राइट, रोबोट टू, रजनीकांत वाली, हाँ, ओके। तो इन अदर वर्ड्स, तो बर्ड फ्लू होने की वजह से अब डिमांड कम हो गया, जिसकी वजह से अभी प्राइस 80 रुपीज पे आ गया है। तो ये देखो, ये रियल इकोनॉमिक्स में तुमको बता रहा हूँ, अभी एक महीने पहले 120 था, समझो 120 था, और अभी 80 पे है। डिमांड कम होने की वजह से डिमांड सप्लाई का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट नीचे आ गया। पॉइंट नीचे आने की वजह से प्राइस भी नीचे आ गया, और ये फैक्ट है, यही इकोनॉमिक्स है भैया। तो डिमांड और सप्लाई ही तो प्राइस डिसाइड करती है। वेरी गुड। चलो, तो यहाँ एग्जाम्पल हमने देखा, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 है, और ये रहा आपका डायग्राम। 15 रुपीज कैसे आया, इक्विलिब्रियम प्राइस जो यहाँ एक्सप्लेन किया है। चलो फाइन, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। डायग्राम है, सब कुछ है, अपनी बुक इज द बेस्ट बुक, आई टोल्ड यू। तुम्हें और कोई बुक हाथ भी नहीं लगाने की जरूरत है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, लेट्स कम टू द वर्ड, और आई विल से अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। नाउ परफेक्ट परफेक्ट बहुत हो गया, अभी एक एक इम्परफेक्ट मार्केट देखते हैं, टाइम है अपने पास, आराम से हो जाएगा। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, कुछ सिलेबस से निकाला भी गया है, आई रिपीट, पहले मैं मोनोपोली पढ़ाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो मैंने पहले बताया हुआ है, अगर नहीं याद है आपको या आप भूल गए हो तो अभी आप मार्क कर लोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं अभी 2 मिनट में पढ़ाया था। नेचुरल, लीगल, प्राइवेट, पब्लिक, सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिंग, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था ये सब, बट अभी सिलेबस में नहीं है। तो टाइप्स ऑफ मोनोपोली हैज बीन डिलीटेड। रिमेंबर, इफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डिलीटेड देन अकॉर्डिंगली उसका डिस्टिंग्विश, शॉर्ट नोट, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट नोट नहीं है और ऑब्जेक्टिव है, ऐसा होता नहीं। तो ये क्वेश्चन गया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग है लेकिन टाइप्स नहीं है, मीनिंग है टाइप्स नहीं है, ये भी डिलीट हो गया है, टाइप्स नहीं है। टाइप्स ऑफ प्राइस, बहुत इजी आंसर था बट इन लोगों ने निकाल दिया है, निकाल दिया तो मैं नहीं बोलूंगा। देन मैं मार्क कर रहे हो ना, देन डिस्टिंग्विश में मैंने आपको बताया था, कुछ डिस्टिंग्विश निकाल दिए गए, ये नहीं है क्योंकि टाइप्स ऑफ मोनोपोली ये नहीं है। 2, 3 डिस्टिंग्विश नहीं है। अच्छा, और मैंने आपके लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी अभी कर लेंगे फटाफट, डोंट वरी। अकॉर्डिंगली कुछ एग्री डिसएग्री नहीं होंगे, क्योंकि जब वो क्वेश्चन नहीं है तो एग्री डिसएग्री भी नहीं होगा। अगर नहीं है तो, अगर है तो है। और मैंने आपके लिए फाइल ओपन करके रखी है, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। दिस इज द डिलीटेड पोर्शन फाइल, ये देखो रेडी रखा है मैंने, आप उन्हें खुद बनाए। डिलीटेड पोर्शन में एज फार एज मार्केट टॉपिक इज कंसर्न, ये रहा। टाइप्स ऑफ मोनोपोली नहीं है, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और 3 डिस्टिंग्विश नहीं है, एग्री डिसएग्री। डिस्टिंग्विश 3 नहीं है, 1, 2 और 3। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 1, 2 और 3 डिस्टिंग्विश है कि नहीं है। न्यू शेयर, डिस्टिंग्विश, यस, वेर आर द डिस्टिंग्विश। अरे भाई डिस्टिंग्विश कहाँ है, हाँ, क्यों, वन तो है, परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली तो है, 2 और 3 नहीं है, डिस्टिंग्विश में 2 और 3 नहीं है, बराबर, पहला तो है, पहले का टेंशन नहीं। ओके, चलो ये बात मालूम पड़ गई। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, ये टाइप्स ऑफ मार्केट टॉपिक चल रहा है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो पहले हम जरा मोनोपोली वगैरह को पहले सीख तो लें, बाद में आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली बहुत ही सिंपल, 2 वर्ड से आता है, ग्रीक वर्ड मोनो एंड पॉली। मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर। तो ये ऐसे मार्केट, सब में कॉमन वर्ड मार्केट आएगा, कि हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, जहां सिर्फ एक सेलर है, वो पूरे मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो जो चाहे वो प्राइस डिसाइड करेगा, वो अपने हिसाब से जो प्राइस पे चाहे बेचेगा, उसके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। डू यू रिमेंबर,
मैं राजा हूँ, मैं पूरे मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करता हूँ, मैं जो प्राइस चाहे चार्ज करूंगा, तुझे खरीदना है तो खरीद वरना फुट। याद आया किसी को? और मैं चाहूं तो डिस्क्रिमिनेशन भी करूंगा, जिससे जो प्राइस चाहिए वो लूंगा, किससे कम किससे ज्यादा, मेरी मर्जी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली. So let's see. Monopoly, two Greek word, as I told you. There is only one seller. There is no competition. Monopoly refers to a single firm, Professor Chamberlain, which has control over the supply of product, which has no close substitute. फीचर्स में हमने कोडवर्ड बनाया था. सलमान फिर चला पेरिस, अमेरिका, पोलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, है ना. सलमान फिर चला पेरिस, अमेरिका, पोलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड. ऐसे ही बनाया था हमने कोडवर्ड. सलमान सिंगल सेलर, वो अकेला है मार्केट में और कोई सेलर नहीं है. फिर फर्म इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि यहाँ वो अकेला है तो वही फर्म है, वही इंडस्ट्री. कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई, ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई. He can increase the supply. He wants, he can decrease the supply. He has complete control. He will not allow others to enter into the market. Price maker, ये ध्यान से सुनो. In perfect competition, the seller is price taker. जो प्राइस मार्केट डिसाइड करेगा वो प्राइस पे वो सेलर्स लोग को बेचना पड़ेगा. लेकिन इन मोनोपोली दिस गाय इज अ प्राइस मेकर. ही इज अलोन. ही विल डिसाइड द प्राइस. Absence of substitute, because he is alone, he has no substitute. And this is one खास बात, he does discrimination. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस. जैसे एक विलेज में डॉक्टर है तो वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पेशेंट से अलग अलग फीस ले रहा है. पुअर पेशेंट से कम, रिच से ज्यादा. मैंने कहा था अर्जुन एक गांव में डॉक्टर है, वहाँ एक गरीब किसान को सांप काट लेता है, तो गरीब किसान आता है तो अर्जुन कहता है 10 रुपए में मैं आपको एंटीडोट दे दूंगा. वहीं जमींदार साहब के बेटे को सांप काटता है तो अर्जुन कहता है मैं 1000 रुपए लूंगा. सेम मेडिसिन, सेम सांप, बट फिर भी ही इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइस. ओके, सांप भी सेम था. वाह वाह वाह. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हिज जॉब क्या है? हिज ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट मेक प्रॉफिट. दुनिया जाए भाड़ में, बायर जाए भाड़ में, मुझे प्रॉफिट चाहिए. आई वांट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड द प्रोडक्शन एंड सो ऑन. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मेरा कोई अलग से क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो सलमान फिर चला पेरिस, अमेरिका, पोलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड. सलमान सिंगल सेलर. मोनोपोली में तो कितने एग्जांपल्स है. एटॉमिक एनर्जी देव. अब रियल लाइफ में थोड़े कम एग्जांपल है, कितने तो नहीं बोलूंगा, कम है. एटॉमिक एनर्जी में इंडिया में आज भी तो मोनोपोली है. क्या कोई एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है प्राइवेट? अंबानी जी बोल सकते हैं भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैं बनाऊंगा एटॉमिक बॉम्ब, मुझे बहुत मजा आ रही है. नहीं बना सकते ना, वो पॉसिबल ही नहीं है. तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है मोनोपोली का, है कि नहीं. हाँ, अभी मोनोपोली कम हो गए हैं. जैसे पहले रेलवेज भी एक्चुअली बोला जाए तो मोनोपोली था इंडिया में, लेकिन आपको मालूम है अभी रेलवेज में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं. ये अपना मेट्रो वेट्रो भी आ गए हैं, उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो इसलिए अभी एग्जाम्पल कम हो गए हैं. यू आर राइट. तो सलमान सिंगल सेलर. फिर फॉर्म इज इंडस्ट्री. चला कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई. पेरिस प्राइस मेकर. अमेरिका एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट. पोलैंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. पाकिस्तान प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. न्यूजीलैंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ऐसे लिंक बना के पढ़ना है. आई रिपीट अगेन, टाइप्स ऑफ मोनोपोली सिलेबस से निकाल दिया गया है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग हमारे सिलेबस में है, टाइप्स निकाल दिया है. आपको अभी भी बताया मैंने. एक्सक्यूज मी. डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब भेदभाव. वो भेदभाव किस प्रकार का? यहां प्राइस का है. चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस एट द सेम टाइम. एक ही वक्त पे अलग अलग कस्टमर से क्यों जूही मोहता, याद आ रहा है? अलग अलग प्राइस चार्ज करना. अरे लहर कहाँ हो आप? आए हो कि नहीं? सब लोग आए ना? वेरी गुड. तो देखो एकदम बढ़िया एक एक टॉपिक प्यार से रिवीजन होते जाएगा. और लाइव तो लाइव होता है भाई, कुछ भी बोलो. माना कि रिकॉर्डिंग है बट लाइव लेक्चर मिस नहीं करना.
तो बट एक बार रीड भी करके आएंगे तो और अच्छा होगा। जैसे नेक्स्ट लेक्चर, आई रिपीट अगेन, कंज्यूमर्स बिहेवियर हम लोग प्लान कर रहे हैं। जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा 7 का 8:30 का जो भी टाइमिंग होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्या बात कर रहा था मैं? यस, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर। जैसे वो डॉक्टर का, हमने डॉक्टर की सर्विस का एग्जांपल लिया। Types of discrimination they have deleted from the syllabus. That's why I am not going to discuss about that or talk about that. डिस्टिंग्विश में ये हम अच्छी तरह जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, मोनोपोली में एक सेलर है। परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन है, मोनोपोली में कंपटीशन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर का सप्लाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, मोनोपोलिस्ट का है। एग्जैक्ट उसका अपोजिट हो गया। यहाँ याद रहे, यहाँ फर्म प्राइस टेकर है और यहाँ फर्म प्राइस मेकर है। फ्रीडम है एंट्री एग्जिट का, फ्रीडम नहीं है। सो आई विल आस्क यू क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी whether this market is a perfect competition or monopoly। हाँ, एक ही सेलर है। मोनोपोली होगा तो एम लिखो, परफेक्ट कंपटीशन होगा तो पीसी लिखो। एक ही सेलर है। वेरी गुड, मुझे पता चले भाई सब जानने के लिए। यस ओजस्वी, यू आर राइट। ध्रुवी, वेरी गुड। मैं सेलर हूं, मेरे जैसे बहुत हैं, और हम सब के सब प्राइस टेकर है। हम सब प्राइस टेकर है, जो मार्केट बोलेगा वो प्राइस पे हमको बेचना पड़ेगा। पीसी, परफेक्ट कंपटीशन, वेरी गुड। भाई मेरा पूरी सप्लाई पे कंट्रोल है, मैं डिसाइड करूंगा कितना सप्लाई करना है, खरीदना खरीदने तो भागे ऐसे। मोनोपोली, वेरी गुड। मेरे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, मेरे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो भी एक जैसे। परफेक्ट कंपटीशन, वेरी गुड। देखो पूरा सिलेबस ऑनलाइन हो गया। अब प्रे करो कि गवर्नमेंट जल्दी परमिशन दे, तो अपना बाकी रिवीजन आगे का हम क्लास में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली मतलब 2 और 3 आपके सिलेबस में नहीं है। चलो मोनोपोली के बाद हम, पहले मैं आपको मोनोपोलिस्टिक करूंगा फिर ओलिगोपोली, या कैसे भी कर सकते हैं। चलो ओलिगोपोली पहले कर लेते हैं। क्या करें पहले? ओलिगोपोली कर लें, ठीक है। ओलिगोपोली दो ग्रीक वर्ड से आया, ओलिगो एंड पॉली। ओलिगो का मतलब है फ्यू, तो ये वो मार्केट है जहां फ्यू सेलर्स हैं, चाहे वो होमोजिनस या डिफरेंशिएटेड बनाते हो, लेकिन सेलर्स फ्यू है। मेन वर्ड इज फ्यू सेलर, याद रहे। होमोजिनस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। और वैसे आपको मालूम भी है, रियल में 100% होमोजिनिटी थोड़ा मुश्किल ही है। तो होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अगेन ओलिगोपोली रियल लाइफ में होता है बट कम देखने को मिलेगा। याद रखना, मेन वर्ड पकड़ के चलना है आपको, फ्यू सेलर्स। मतलब बेसिकली 3 4 5 तक आप पकड़ लो। दो होंगे ना तो उसको डुओपोली बोलते हैं। सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, दो सेलर को डुओपोली बोलते हैं। डुओ डुओ दो। एक को बोलते हैं मोनोपोली। अनलिमिटेड को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। 3 4 5 है तो बोलते हैं ओलिगोपोली। 5 से ज्यादा है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। फ्यू सेलर, जैसे अगर मैं आपको अपने इंडिया में एग्जांपल ले, तो मेरे ख्याल से सिम कार्ड का मार्केट सही रहेगा। सिम कार्ड बोले तो अपना जो मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल कंपनी है, जैसे 3 4 नाम बताइए मोबाइल कंपनी के जो इंडिया में आज प्रेवलेंट है। मेरे पास जियो और एयरटेल है, दो फोन रखना पड़ता है ना, दो नंबर। एयरटेल तो मैं रिफिल कराता ही नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ। तो जियो और एयरटेल, फिर वोडाफोन है, फिर वो आइडिया किसके साथ मिल गया ना, वोडाफोन और आइडिया मिल गए ना अभी, तो वी बन गए शायद। वी शेयर मार्केट में बहुत भाव ऊपर आ रहा है इन लोग का, कल ही न्यूज़ आई है, काफ़ी ये लोग ऊपर आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी एक हो गए। जियो को टक्कर देना पड़ेगा ना, एयरटेल की तो बेचारी की 12 बज रही। तो जियो, वी, 3 4 कंपनी शायद मेरे ख्याल से मार्केट में होगी, जो भी। तो ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल, बेबी सीरियल्स, छोटे बच्चे को खाते हैं, सेरेलैक, लैक्टोजेन, पता नहीं क्या क्या। अरे वो बेबी पाउडर होता है ना, वो मिला के खिलाते हैं उन लोग को, फेरेक्स शायद। अभी पता नहीं, कोई के घर में तो छोटा बच्चा रहेगा और खाता होगा तो मालूम होगा। तो मैं तो नहीं विश्वास करते ऐसे पाउडर वाउडर खाने में। भाई घर का खाना खिलाओ धीरे धीरे, जैसे बच्चा खाना सीखे। तो आई थिंक 3 4 प्लेयर है मार्केट में अबाउट दिस बेबी प्रोडक्ट्स। बेबी पाउडर ही ले लो, चलो। बेबी लोग को पाउडर लगाते हैं ना, छोटे बच्चे एकदम छोटे, पाउडर नहा के पान लगाते हैं पाउडर, तो वो भी मेरे ख्याल से मार्केट में 3 4 मिलेंगे आपको। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल लो, बट 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो ओलिगोपोली कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यू सेलर। तो इससे साबित होता है कि यस,
मोनोपोली भी मार्केट होता है इकोनॉमी में, और ओलिगोपोली भी होता है। मोनोपोली और ओलिगोपोली बट रेयर होता है, कम मिलेगा आपको। मोनोपोली, फ्यू फर्म्स और सेलर, देर आर फ्यू फर्म्स। इंटरडिपेंडेंस, ये 2 3 4 5 जो है, ये आपस में ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक प्राइस कम करेगा तो दूसरों को भी कम करना पड़ेगा। जैसे जियो ने एकदम सस्ते से लॉन्च किया था, आई थिंक 199 से स्टार्ट किया था उसने, नहीं? पहले आपको पता है, खाली डेटा की बात कर रहा हूं मैं, 2 GB डेटा के लिए हम लोग 250 रुपया देते थे, 250 रुपीज पर मंथ। यस, यू वोंट बिलीव। और कभी मोबाइल डेटा ऑन रह जाता तो बहुत दुख होता था, यार इतना एमबी कट हो गया अपना। तो जैसे आप एमबी यूज करते थे, डेटा कम होता था। और 2 GB डेटा का हम वो जमाने में 250 रुपया, वो जमाने का 250 रुपया देते थे 10 साल पहले। आज 2 GB तो फोकट में मिलता है एक दिन का, है ना? ऐसा कुछ है कि नहीं? तो आप इमेजिन करो क्या जमाना आ गया। तो अब ये हुआ कि सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक कम करेगा सबको कम करना पड़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरे भी बढ़ाएंगे। तो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। देखो मैंने लिखा भी है, एयरटेल, जियो। एडवर्टाइजिंग, क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं तो इनको कस्टमर्स को पटाना बहुत जरूरी है। कस्टमर को पटाना है तो ऐड करना पड़ेगा, और ये लोग बहुत ऐड करते हैं। अभी तो इतनी नहीं करते होंगे, बट पहले तो जब ये मार्केट में आते हैं तब वो बहुत ऐड करते हैं। जियो ने कम ऐड किया था, बहुत ऐड किया था। एयरटेल आज भी याद है, टोडोडोडोडो, टोडोडोडोडो वगैरह। तो ऐड करते हैं ये लोग, एग्रेसिव मार्केटिंग बोलते हैं इसको। एंट्री बैरियर्स, ये 4 5 जो लोग हैं ये और लोगों को आने नहीं देंगे, और सेलर्स को मार्केट में आने नहीं देंगे। कैसे? लाइसेंस, पेटेंट वगैरह। जैसे इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट अ सेल कंपनी, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ेंगे, ऐसे ही कोई नहीं आ सकता। बिरला आ गया, आइडिया बिरला का ही था। रिलायंस आ गया, जियो रिलायंस का है। आरती भारती सेल्युलर करके कंपनी का है, जहां तक मुझे मालूम है। वोडाफोन तो फॉरेन है, शायद फॉरेन कंपनी, जो भी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इनकी जो फॉर्म्स है उनकी साइज भी ऊपर नीचे हो सकती है, कोई बड़ी फॉर्म है कोई छोटी फॉर्म है। जैसे जियो आपको मालूम है आज बहुत बड़ी फॉर्म है या बहुत बड़ी कंपनी है। अनसर्टेनिटी, इनका बिहेवियर पैटर्न सबका अलग है। राइवल्स में देखो, ये राइवल में जॉइन हैंड एंड कोऑपरेट एंड में ट्राई टू फाइट अगेंस्ट, और दे में ट्राई टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर। फाइट अगेंस्ट ईच अदर में तो लॉस ही होगा। इसीलिए तो देखो ना, आइडिया और वोडाफोन एक साथ आ गए, और अब दोनों का पावर बढ़ गया है। नाउ दे हैव अ गुड कंज्यूमर और कस्टमर बेस। अभी वो जियो को फाइट कर रहे हैं, लेकिन शायद जियो ही नंबर 1 है। एयरटेल की तो बैंड ही बज गई है शायद। एयरटेल को शायद ना, पता नहीं, काफी लॉसेस भी हो रहे हैं शायद, या प्रॉफिट तो कम हो ही गया है एयरटेल का। जबकि एयरटेल का भी सर्विस मेरे ख्याल से ठीक है, बट इफ अ न्यू प्लेयर कम्स विद अ लो प्राइस, देन यू विल टेक दैट प्लेयर ना। जैसे एयरटेल मेरे पास कितने साल से पता है? 20 साल हो गया। 2001 में मेरे पास मोबाइल आ गया था, जब मिरौर में बहुत कम लोगों के पास था, शौक था। वो टाइम पे भैया हम लोग आउट गोइंग 32 रुपए था, एयरटेल भी पैदा नहीं हुआ था। इट वॉज बीपीएल। बीपीएल अलग कंपनी थी। एयरटेल 2001 के आसपास आया था, उससे पहले या 2002 में आया था शायद, जब मेरे पास बीपीएल था। 32 रुपीज आउट गोइंग, कैन यू इमेजिन? 1 मिनट का डेटा वेटा तो था ही नहीं, 32 रुपया आउट गोइंग था। वो जमाने में बहुत कम लोग थे, मिरौर में शायद 5 6 लोग थे जिनके पास फोन था। शो के लिए मोटोरोला, मेरे दुबई से मेरा कजन लेके आया था मेरे लिए, पीस मोटोरोला का था, नोकिया और मोटोरोला दो ही थे। एंड 32 रुपीज वॉज आउट गोइंग पर मिनट। इनकमिंग कुछ 19 रुपया कुछ था। यू वोंट इमेजिन, इतना महंगा था। शॉप के लिए यूज करता था, ज्यादा यूज नहीं करता था, बट जो भी है। आज आपको मालूम है मोबाइल तो इतना कॉमन है कि भिखारी लोग भी मस्त मोबाइल यूज करते हैं। कभी आपने देखा होगा, हेलो हाँ किधर बैठा है, हाँ मैं इधर हूँ, कितना हो गया आज? 500 रुपया हो गया, ठीक है शाम को आता हूँ, ओके। तो अनसर्टेनिटी, राइवल्स जॉइन हैंड, और अभी यही हुआ ना, किन लोग ने ज्वाइन किया? वोडाफोन और आइडिया ने ज्वाइन हैंड किया वगैरह। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, जितना अपने सिलेबस में है। और बाकी और भी बहुत बातें होती है मार्केट, इन मार्केट्स के बारे में, बट वो सीए, आप सीए कर रहे हो ना, तो सीए फाउंडेशन में आपको सिखाई जाती है। इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होता है, किंग डिमांड को क्या होती है, बट वी डोंट वांट टू गो इन दैट। हमें तो अपने आंसर से मतलब है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, रुको हम लोग आंसर्स तो करते जा रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक भी कर लेंगे, फिर एग्री डिसएग्री है और कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको मालूम है ना, हम लोग साथ में क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। तो मैं नॉन स्टॉप बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। 1 hour 10 minutes होने आ गया।
पहले मैं सोच रहा हूँ हम साथ में क्वेश्चन बैंक भी बना लें। चलो फिर साथ में अपन बात करते हैं, ठीक है। नोटबुक में आप क्वेश्चन बैंक साथ में बना रहे हो। टॉपिक का नाम लिखता हूँ, ऑफकोर्स ऊपर भी लिखा है बट फिर भी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्वेश्चन बैंक। चलो सब लोग मेरे साथ बना दो अपने अपने नोटबुक में। याद रहे हम लोग नोटबुक में साथ में क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, डोंट यू फॉरगेट दैट। एक्सप्लेन एंड डिफाइन द मार्केट, है ना पहला क्वेश्चन। स्टेट इट्स क्लासिफिकेशन, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। मार्केट क्या है, उसका क्लासिफिकेशन याद रहेगा। क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में हमने किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यार ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो वहां कैसे लेंगे, हाँ हो गया। ये अलग अलग 3 आंसर हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन भी एकदम लंबा करके नहीं, शॉर्ट में लिखता हूँ। What is perfect competition? Features. What is, क्या डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन भी डाल, डेफिनेशन भी बताया था। डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन, ये रहा। Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic। बात तो बिल्कुल सही है। एक सेलर जो बेचेगा वो कितना बेचेगा, उस क्वांटिटी का कोई लिमिट नहीं है। देखो इस डेफिनेशन का मतलब, एक सेलर जो बेचेगा उसके क्वांटिटी का कोई लिमिट नहीं है, जो डिमांड होगी उस डिमांड की कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए द डिमांड फॉर द आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक याद है ना, इनफाइनाइट। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। मीनिंग तो बता दी मैंने। आइडियल और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। बायर और सेलर बहुत लार्ज है, बाइंग और सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट की है, उनको परफेक्ट नॉलेज है, ये सब बात हम पहले कर चुके हैं। तो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, डिफाइन भूल गया मैं। डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन, आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एंड स्टेट इट्स फीचर्स, ओके। चलो ये भी सही है। साथ में क्वेश्चन बैंक बनेगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। गेट टू नो कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन से क्वेश्चन। अगर कोई कोडवर्ड हो तो आप ब्रैकेट में कोडवर्ड भी डाल सकते हो, है ना। इफ यू वांट यू कैन राइट भाई ये पर्टिकुलर कोडवर्ड है। लाल लाल होठ फटे सारे, पहला प्यार नाम ऐश्वर्या राय। Large number of cells, large number of biohomogeneous commodity, freedom of entry and exit, perfect knowledge, perfect mobility of factor of production, no government intervention, absence of transport cost। ऐश्वर्या राय का को डालना, ऐश्वर्या, ओके। देखो एक छोटी सी क्वेश्चन बैंक बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम प्राइस, हाउ इट इज डिटरमाइंड, ओके। है ना। क्वेश्चन 4, स्लोली स्लोली काम हो जाएगा अपना, डोंट वरी। क्वेश्चन 4 कौन है भाई, मोनोपोली। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मोनोपोली का डेफिनेशन, उसके फीचर्स, सलमान, फिर चला पेरिस, अमेरिका, पोलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, है ना। अगर चाहे तो कोडवर्ड ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ओके।
क्वेश्चन 5, टाइप्स ऑफ मोनोपोली नहीं है तो मैं लिखूंगा भी नहीं। प्राइस में खाली मीनिंग है लेकिन उतना लिख लेते हैं। वैसे आपको मालूम होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है ले लेते हैं और क्या है। ऊपर आके गया है, कहाँ आके गया है, ये हमने जो पॉइंट किया था कि मोनोपोलिस्ट कर सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो वैसे कोई पॉइंट आके गया है, बट ठीक है चलो एक बार वापस लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। याद रहे, डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, फिर ओलिगोपोली आएगा। भाई कहाँ गया, इतना ऊपर कैसे पड़ गया, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा डिस्टिंग्विश आ रहा है पहले, ठीक है डिस्टिंग्विश पहले लिख देंगे। डिस्टिंग्विश एक ही तो है, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली है, और क्या। तो बाद अभी लिखना है, अभी लिख लो डिस्टिंग्विश परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली। ओके, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं। देन व्हाट एल्स, ये डिस्टिंग्विश तो है नहीं। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली अभी हमने किया, कोई चेक करना ओलिगोपोली का कोई कोडवर्ड था क्या अपना, ओलिगोपोली का फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। हाँ जरूरत ही नहीं थी, मुझे मालूम है नहीं था इसलिए बोलो, जरूरत ही नहीं थी, एकदम सिंपल है, काय को जबरदस्ती का कोडवर्ड बनने का है इसको, जरूरत नहीं थी। ओलिगोपोली के फीचर्स, वेरी लॉजिकल आंसर। ओलिगोपोली का है भाई, मोनोपोली ओलिगोपोली घूम गया क्या, अरे ये तो भूल ही गया यार मैं, प्राइस कैसे डिसाइड होता, शिट ये भी लेना पड़ेगा भाई, नहीं तो कैसे चलेगा। ये तुम प्राइस भूल गए, हाँ नहीं लिया लिया बच गया। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली कहाँ है, ओलिगोपोली ये रहा, ओलिगोपोली। ओके, कितने पॉइंट हैं ओलिगोपोली में, 5 ही 6। ओके चाहिए कोडवर्ड, देखो अभी का अभी बनाया मैंने। एयर इंडिया फ्लाइट, ये ए है, ये आई है, ये एफ है। एयर इंडिया फ्लाइट, एवरीवन लव्स यू, ई से एवरीवन आएगा, एल से लव्स आएगा, यू से यू आएगा, एवरीवन लव्स यू। एयर इंडिया फ्लाइट सबको पसंद है, देखो अभी का भी बनाया मैंने। एयर इंडिया फ्लाइट, एवरीवन लव्स यू, पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट, चाहे तो अपने बुक में साइड में लिख दो, ये देखो ए तो एडवर्टाइजिंग हो गया, एयर इंटरडिपेंडेंस हो गया, इंडिया फ्यू फॉर्म्स हो गया, फ्लाइट, एयर इंडिया फ्लाइट अच्छा बना है, तो आजू बाजू इधर एक छोटा प्लेन भी बना देने का है। एयर इंडिया फ्लाइट, एवरीवन लव्स यू, तो सबको एयर इंडिया फ्लाइट पसंद है, जबकि बहुत घटिया होती है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट, एवरीवन लव्स यू, यू फॉर यू, एवरीवन, एयर इंडिया फ्लाइट, एवरीवन लव्स यू, लो बन गया कोडवर्ड बस। एयर इंडिया फ्लाइट, एवरीवन लव्स यू, है कि नहीं, लो ओलिगोपोली का भी कोडवर्ड बन गया, खुश। एयर इंडिया फ्लाइट, एवरीवन लव्स यू, एयर एडवर्टाइजिंग, इंडिया इंटरडिपेंडेंस, है कि नहीं, ऐसे आराम से हो गया। एयर इंडिया फ्लाइट, एवरीवन लव्स यू, ये हो गया ओलिगोपोली। अच्छा उसके बाद ये वाला आ रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मोनोपोलिस्टिक, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। मोनोपोलिस्टिक समझो, क्वेश्चन 8 या जो भी क्वेश्चन है, वेल इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किधर गया, लिफ्ट पे लगा फैन स्लो धीरे चले, याद है कोडवर्ड, इसका कोडवर्ड था लिफ्ट पे लगा फैन स्लो धीरे चले, इतना सिंपल है, बट इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट। लिफ्ट पे लगा फैन, स्लो धीरे चले। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? अभी अभी हमने बात की, ये देखो साथ में क्वेश्चन बैंक बन रही है, साथ में क्वेश्चन लिखते जाओ, कि परफेक्ट कंपटीशन तो रियल लाइफ में होता नहीं, मोनोपोली होता है बट रेयर होता है, ओलिगोपोली होता है, रेयर होता है। तो फिर रियल में क्या होता है? इतने हजार लाख टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में रोज बिकते हैं, तो रियल लाइफ में क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि रियल लाइफ में आपको मिलेगा परफेक्ट, सॉरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां हजारों हजारों सेलर है, हजारों हजारों बायर है, फ्रीडम भी है एंट्री और एग्जिट का, लेकिन प्रोडक्ट होमोजिनस नहीं है। सबसे बड़ी डायलॉग सुन लो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट, बट द प्रोडक्ट इज नॉट होमोजिनस। दैट्स द मेन पॉइंट। प्रोडक्ट हेटेरोजीनस है, डिफरेंट है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है, हर सेलर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बिके, दैट्स व्हाई दे हैव टू इनकर लॉट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। And in real life, in many examples we can take this. Let us say for example washing powders. तो कोई के घर में सर्फ आता है, कोई के घर में एरियल आता है, कोई के घर में घड़ी आ रहा है, कोई के घर में रिन आ रहा है, व्हील आ रहा है, जो भी है, ये सब वॉशिंग पाउडर्स है। हजारों सेलर हैं, हजारों बायर हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, बेचना है बेचो, नहीं बेचना है बेचो, पूरा फ्रीडम है। लेकिन इनके बीच में कंपटीशन देखो कितना कड़क है, कट थ्रोट। ये लोग एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्चा करते हैं। अच्छा, प्राइस भी अलग अलग है, प्रोडक्ट के फीचर्स भी अलग अलग है। कोई भी एग्जांपल हो, टेलीविजन, कोई के घर में सैमसंग है, कोई के घर में सोनी है, कोई के घर में एलजी है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। लेट अस हैव अ लुक ऑन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये रहा, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है बट वापस देख लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट। कैसा मार्केट है वो, है ना? ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पर फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट सेलर्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। You remember, you write the word close, fine, but don't write the word perfect substitute. देव, आपको मैंने बताया था क्लोज और परफेक्ट में फर्क होता है। जैसे एग्जांपल, अपना सगा भाई या सगी बहन, तो वो अपना रियल ब्रदर या सिस्टर है, और कजन जो है वो कजन है, रियल तो नहीं है ना, कजन है। भाई मामा का बेटा, चाचा का बेटा, ताऊ जी का बेटा, बुआ का बेटा, मासी का बेटा, बेटा बेटी जो भी है, वो अपने कजन है। सेम वे देयर इज क्लोज सब्स्टिट्यूट बट नॉट परफेक्ट। ये सोप का मैंने एग्जांपल लिया, लक्स, डेटॉल, दुनिया भर की सोप है। परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली रेयर है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक एक्चुअल है। मोनोपोलिस्टिक रियलिस्टिक भी है। प्रोफेसर चेम्बरलिन इसके बारे में थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बुक में लिख चुके हैं। डेफिनेशन क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन refers to a competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitute। ठीक है, कोड वर्ड याद है आपको? लिफ्ट पे लगा फैन, स्लो धीरे चले। कई बिल्डिंगों में जो लिफ्ट होती है वो लिफ्ट के फैन एकदम थकीले मरेले होते हैं। तो लिफ्ट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर्स हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हर प्रोडक्ट एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो अलग होगा, 100% सेम नहीं होंगे। दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट बट नॉट परफेक्ट। लगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर, बहुत सारे बायर्स हैं यहाँ। हाँ, यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। सीए में हम लोग सिखाते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्चुअली दोनों मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन भी और मोनोपोली भी है। नॉलेज के लिए बोलता हूँ। देखो क्या होता है कि आप वो प्रोडक्ट के फैन बन जाते हो, तो आप उसकी तरफ लॉयल्टी डेवलप करते हो, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली, क्योंकि वो बंदा वो ब्रांड ही खरीदेगा। जैसे एलजी, मेरे घर में एसी भी एलजी है, फ्रिज भी एलजी है, और टीवी भी एलजी है। मैं तो बोलता हूँ एलजी कार होती तो मैं वो एलजी कार भी ले लेता, क्योंकि मुझे एलजी बहुत पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो एलजी मेरा ब्रांड है, एलजी मोनोपोली हो गया। बट इसी एलजी को आप दूसरे टीवी के साथ कंपेयर करोगे तो ये हो गया कंपटीशन। तो देयर इज एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ बोथ। तो कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जो ब्रांड लॉयल्टी रखते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आना आओ जाना जाओ। सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि गला काट कंपटीशन है। रिमेंबर, कैन यू टेल मी द इंग्लिश वर्ड फॉर गला काट कंपटीशन?
In economics, we use that word, cutthroat. In economics, the word is cutthroat competition. Every seller wants to destroy the other seller. खत्म कर दूंगा इसको. जियो आया, देखो जियो का तो एग्जांपल ही चलेगा, वो तो ऑलिगोपोली हो गया. बट तुम इसका एग्जांपल ले लो. मैं आपको बताऊं, वॉशिंग पाउडर में ये क्या नाम है उसका, सर्फ और एरियल टॉप पे थे, लेकिन फिर आया घड़ी. घड़ी पाउडर क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी कम है. धीरे धीरे उसने एरियल और सर्फ के मार्केट की बैंड बजा दी. अब कई मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास वाले भी घड़ी पाउडर यूज करते हैं. तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी कि गरीब का पाउडर होता है वो अमीर का पाउडर होता है. हाँ, प्राइस के रेंज से फर्क पड़ता है, बट घड़ी प्राइस भी रीजनेबल है और क्वालिटी भी अच्छी है. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. तो देखो ना घड़ी ने कैसी बैंड बजा दी सर्फ और एरियल की. तो ऐसे दे हैव टू इंक्लूड. कितना ऐड किया था घड़ी ने, तो सेलिंग कॉस्ट, brand name, incur selling cost to promote the sale, and demand curve of seller. क्योंकि यहाँ बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं. आपको पता है, हमने इलास्टिक ऑफ डिमांड में पढ़ा था, अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं तो रिलेटिवली इलास्टिक होता है. घड़ी ने वही किया भाई. उसने थोड़ा सा प्राइस कम किया और क्या डिमांड बढ़ी उसकी. अब डिमांड जो आपको घड़ी पाउडर मुश्किल से मिलेगा, फट 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 पब्लिक लेके जाती है. 3 किलो वाला पैकेट एक साथ लेके जाती है. कुछ लोग 6 किलो उठा के ले जाते हैं, बोले 2-3 महीना टेंशन नहीं मांगता है. इतना फास्ट सेल है उसका, इतना ज्यादा सेल है उसका. आप कभी डीमार्ट में पूछो, इतना ब्रांड बन गया वो. तो इन अदर वर्ड्स, तो डिमांड कर्व इज परफेक्टली, सॉरी, रिलेटिवली इलास्टिक, फ्लैट. हाँ बराबर, फ्लैट, रिलेटिवली इलास्टिक, फ्लैट देखो है ना. ओके, एंड व्हाई आई सेड यू, एक्सक्यूज मी. एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. यहाँ इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ऐसे लोगों जो अभी जैसे सोप मार्केट है, तो नानी की साबुन ले लो, चलो डेटॉल है, सिंथॉल है और बहुत है, लाइफ बॉय है, क्या नाम है यार इसका, डव है, ना ये है ना वो है. तो ये सब सोप्स का एक साथ बन गया मार्केट. ऑटोमोबाइल ले लो, मारुति है, टाटा है और बहुत सारे हैं. अभी तो टेस्ला भी आ रही है, वो तो फॉरेन कंपनी है, चलो ठीक है. तो ये सबको जोड़ दोगे तो बन जाएगा ग्रुप. तो ग्रुप कॉन्सेप्ट, ग्रुप ऑफ फर्म्स वगैरह. तो लिफ्ट पे लगा फैन, स्लो धीरे चले. बस 2-4 मिनट और लूंगा, खत्म होने आ गया. एग्री और डिसएग्री आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सेम होता है, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से होता है. यू मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट द सेंटेंस. एग्री है तो यस आई एग्री, नहीं है तो नो, और उसका रीजन लिख देना है. रीजन मीन्स द आंसर. In reality, there is monopolistic competition. Yes, I agree. Here you will write the definition and the features of monopolistic competition. यहाँ मैंने फीचर्स डिटेल में नहीं लिखे, बट आप आंसर में लिखे. परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी है. यस आई एग्री, बिकॉज वो कंडीशंस पूरी नहीं हो सकती. परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक एक ही होते हैं. नो आई डू नॉट एग्री. तो यहाँ आप चाहो तो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो. एंड यू नो दैट यहाँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है लेकिन प्रोडक्ट होमोजेनस है. यहाँ भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर है लेकिन होमोजेनस नहीं. सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता, यहाँ होता है. सिंगल प्राइस है, यहाँ डिफरेंशियल प्राइस है. कम पॉइंट्स है दोनों के बीच में क्योंकि सिमिलरिटी ज्यादा है, डिसिमिलरिटी कम है. सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन, यस आई एग्री. यहाँ आप डायग्राम भी बना के दोगे और शेड्यूल भी बनाओगे. हमने बुक में सब कवर किया है, खुद मैंने बुक बनाई हुई है एक एक चीज को देखते हुए. एज यू नो, ऑब्जेक्टिव्स के सारे आंसर्स दिए हुए हैं. नो इश्यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑल आंसर्स आर गिवन. और जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे वो टाइम पे बुक मार्केट में आई भी नहीं थी, जरूरत नहीं थी अपने को, बट फिर भी वो भी मैंने क्लास में अलग से डिस्कस करवाए हैं. ईच क्वेश्चन वी हैव सीन स्लोली एंड स्टडी. इट हैज बीन अ लॉन्ग वे. जो वैकेशन बैच वाले उनको मालूम है, इट हैज बीन अ लॉन्ग वे. हम लोग करीब शायद अर्जुन मई से पढ़ना चालू कर दिए थे. आई थिंक मई मंथ या अप्रैल मंथ से हमने चालू भी कर दिया था पढ़ना. वैकेशन बैच का सिलेबस बहुत जल्दी हो गया था वैसे. इफ एनीबडी नोज, अगर आपने नोटबुक में फर्स्ट डेट लिखी हो कि हमने कब पढ़ना स्टार्ट किया था, इफ एनी आइडिया यू हैव, जब से हमने स्टार्ट कर दिया था स्लोली एंड स्टडीली. पूरा पोर्शन हमने किया, रिवीजन हमारा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है. 4 टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से हमारे रिवीजन हो रहे हैं. यस, तो ऑब्जेक्टिव्स एज आई सेड, आंसर्स आर गिवन, यू कैन चेक इट. ये आंसर्स हमारे सामने दिए हुए हैं. क्यों, ये शायद याद है ना, धीरे धीरे हमने पूरा ही कोप कर लिया है. सोचो अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो ये 9-10 मंथ्स पूरा आराम कर रहे थे, देखो ना अभी ये कोरोना का 10 मंथ्स भी पूरा हो गया, ये 18, 19, 20 से ही सब नाटक चालू हुआ था, मार्च। और अब वो जागे हैं कि अरे बाप रे, गवर्नमेंट तो एग्जाम लेगी। उनको क्या लगा 12th में भी ऐसे ही पास हो जाएंगे? नहीं। और ये शायद एग्जाम तो रिटन होंगे और सेंटर तो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मेनी इंक्वायरीज आर कमिंग नाउ कि वी वांट टू ज्वाइन, व्हाट टू डू एंड सो ऑन। ऐसे हाल हो गए। सो दोज हु वर स्लीपिंग एट होम 8-9 मंथ्स, दे वर डूइंग नथिंग, नाउ दे हैव वोकन अप। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होंगे, रिटन होंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, बाय द वे अपना काम तो हो गया है। These are all the objectives answers, you know that government objectives के भी आंसर्स हमने किए हुए, no issue about that. And this is your question bank, as we can see. Have you all made the question bank? Yes लिख दें अगर आपका लिख के हो गया है। These are the 8 questions as far as this topic is concerned. क्वेश्चन बैंक हो गया आपका लिखकर? जल्दी बताओ। क्वेश्चन बैंक इज डन 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 डन। Very good. So in each topic we are making question bank, as you know. So this question bank can help you at the last moment. हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, ये कोड वर्ड है, तो उससे काम काफी आसान हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट नाउ। सो आई थिंक वी विल स्टॉप नाउ, लगभग टाइम हो ही गया अब। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेन एवर इट इज एज पर द टाइम टेबल। एंड वी विल बी डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंज्यूमर्स बिहेवियर। ए कमोडिटी, ए कमोडिटी, क्या तुम मेरी वांट पूरी कर सकते हो? हाँ तो यूटिलिटी है, ना तो यूटिलिटी नहीं है। भूखे के लिए खाना यूटिलिटी है, प्यासे के लिए पानी यूटिलिटी है, जिसे नहीं दिखता उसके लिए चश्मा यूटिलिटी है, एंड सो ऑन। तो bye for now. Take care. Stay home. Stay safe. Take care of your health and keep on studying. Now it is January. लगभग 20 तारीख क्रॉस हो गई है. तो I hope कि you have started studying and preparing for the exams. So if you plan it in a perfect manner, you can easily and very well score 90% plus. So please start studying. Go on giving the test, and let's pray that everything gets okay and the classes start. Okay, bye. Take care. Have a nice day. Okay, see you then. Bye, everyone. Bye. Have a nice day. And please go give on giving the tests.